संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3, वचन संख्या 16 से 18। हम प्रेम का मर्म इससे पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहा। किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाई को तंगहाली में देखकर उस पर दया ना करे, तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय के एक दूसरे को प्यार करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यही वचन को मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी। The first letter of Saint John, chapter 3, verse 16 to 18. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. The word of the Lord. Thanks be to God. चलिए हम सब इस वचन पर मनन चिंतन करते रहें और हम यह वीडियो देखें। ¿Qué haces? Jugar a Clash Royale. A ver, ¿cómo va tu...? ¿Esto qué es? La arena, entonces aquí es cuando... Oye, mamá, ¿Qué? ¿por qué no tengo móvil? Porque eres pequeño. Pero es que todos mis amigos tienen. No me lo creo. Tus amigos son pequeños, ¿cómo van a tener móvil? Porque sus madres se los compran. ¿Y para qué lo quieren? Pues para llamar a sus amigos y cosas así. Uno tiene que estar siempre a la última, ¿no? O sea, igual que en el trabajo, o sea, me tuve que cambiar del analógico al digital y te tienes que reciclar continuamente, pues con la familia, con los niños, con la educación te pasa igual, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Sí o no? Te veo un poco pequeño. Pero si yo ya soy mayor. Sí, eres mayor, pero... no sé, no para todo. Venga, porfa. Yo creo que todas las situaciones que se dan en una educación familiar son situaciones que tenemos maravillosas para aprovechar para realmente ayudar a nuestros hijos a que realmente sean capaces de tomar esas decisiones, ¿no? Las tecnologías, unas influencias externas tan grandes, tan poderosas, que son buenas si las sabes usar bien, pero tienen sus peligros. Pues me dedico al diseño gráfico, sobre todo de cosas digitales, de webs y aplicaciones de celular. Si eres padre, te tienes que informar de cuáles son las que usan tus hijos o los amigos de tus hijos, porque luego cada generación tiene su aplicación o su red preferida. Y no mirar para otro lado y ver qué pasa y hablar con tus hijos de ello y educarles. No podemos taparnos los ojos o esquivarlas, están ahí y se van a quedar. Entonces hay que aprender a convivir con ello. Sobre todo con los más pequeños, porque es a los que más les puede impactar. Siempre les decimos mucho que
Si están usando una tableta o algo y si ven algo, se encuentran algo que no les gusta, que les turba, que tal, que nos lo digan corriendo, que no pasa nada y que nos lo cuenten. Sí, sí. No sé cuánto es. Mira, te voy a enseñar una cosa que he hecho, a ver si te gusta. Oh, qué mono. Está bien, está chula, ¿verdad? Ay, ¿sabes lo que me ha dicho tu hermano? Que necesita ya un móvil. Pablo, ¿te lo ha dicho? Sí. ¿Y qué le has dicho? Que no sé. ¿Tú qué piensas? Te metes en el ordenador, simplemente a lo mejor tenía que hacer un trabajo, ya no me acuerdo, y pues a veces saltan ciertos tipos de anuncios que claro, cuando eres pequeña eso te llama un poco más la atención, como ¿qué es esto?, ¿no? Entonces, y quería retroceder, entonces, bueno, pues como pude tal, pero luego me sentía muy mal conmigo misma. Me costó decírselo a mi madre, pero en cuanto se lo dije me dijo que no me preocupase, que lo había hecho muy bien en contárselo. Lo que no quiero es que se quede como descolgado, ¿no? O sea, que la información de sus amigos pues vaya todo por el grupo de WhatsApp y él no se entere. Hombre, yo creo que teniendo la edad que tiene, no creo que el móvil lo quiera para enterarse de lo que ocurre, y el WhatsApp va a ser más pues para poder descargarse juegos, tener sus propios juegos, pues no tener que compartir el iPad con los demás. Además justo tenía más o menos la edad de Pablo y fue en el ordenador, y ahora el móvil lo tienes más al alcance, te puedes encontrar con cualquier tipo de anuncios o de cosas, tú eso no lo puedes controlar. Pero bueno, yo lo hablo con papá. ¿Qué tal? ¿Te ha ido hoy? La educación solo se puede llevar a cabo si hay confianza. Si hay confianza de marido y mujer, si hay confianza de padres e hijos, si hay confianza de padres con profesores. Realmente es la clave de realmente la educación. ¡A comer! ¡Todos! Yo cuido un tiempo muy importante, que es la cena. Yo lo llamo el momentazo. Cenamos todos juntos y cada uno ahí habla y el tema es sorpresa. O sea, se habla de lo que sea. Papá y mamá dejan el móvil en su cuarto y se van a comer. O sea, cuando yo digo a comer, se viene con las manos limpias. Pero igual que los pequeños tampoco pueden traer un juguete. Esto es muy típico de los niños, ¿no? Te vienen con el Spiderman a comer. O sea, que vamos a comer, deja eso ahí. Es que... Fíjate que hay muchos niños de su clase que ya tienen, que a muchos se lo han regalado incluso cuando hizo la comunión. La primera comunión ahora es el regalo de moda. Antes en el cole todos vivíamos a hablar del cole y tus amigos estaban, bajabas a la calle y estaban, ahora no, y yo eso lo entiendo y es como hablan los jóvenes. Pero él ahora es muy pequeño, lo quiere para jugar. Y ya puede jugar cuando dejamos la tablet. Hemos tenido con sus hermanos también problemas que nos van a volver a pasar. No puede ser el policía total. Ni es bueno tampoco, tienen que ir haciéndose libres y aprendiendo a gestionar esas cosas. Tú a tus hijos les educas, les acompañas en la vida hasta que se hacen mayores para que sepan gestionar su libertad. Procura que de tus niños aprendan a valorar sus actos delante de Dios. Coges al niño o a la niña y le dices, esto no puede ser por esta razón y la otra. Le das motivos sobrenaturales para que discurra, para que se sienta responsable. Y después no les muestres desconfianza. Es preferible que te engañen una vez a que tú destroces ese gran cariño y esa unión que ellos tienen con sus padres. Pero educación es enseñar a tomar decisiones de una forma libre y que realmente que te realice como persona. Que el momento va a llegar. Entonces, si ahora es, pero dosificado... A mí me parece está bueno que empiece a usarlo, pero con el niño. Y luego ya vamos viendo. Lo mejor que puedes hacer es educarles en eso, ¿no? O sea, cómo funciona, qué te puedes encontrar y la confianza. So सबों को जय यीशु। आज ऑलिवर का टर्न था, लेकिन फिर मैंने कहा कि लाइक ऑलिवर आज मैं बोलता हूँ बोल के। सो सभी लोगों ने आज का वीडियो देखा एंड दैट वाज लाइक क्वाइट अमेजिंग। हम लोग जब देख रहे थे तो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आज के जनरेशन का सच्चाई कहीं ना कहीं दिखाया गया है। एक फैमिली में लाइक किस तरीके से पेरेंट्स जूझते हैं टेक्नोलॉजी को लेके अपने बच्चों के साथ, एंड किस वे से लाइक हैंडल किया जाता है। काफ़ी बेस्ट पार्ट एक वीडियो में मुझे जो कि
मतलब बेस्ट एज इन लाइक थोड़ा सा हंसी भी आ रहा था, जो कि एक काफ़ी खतरनाक सा ट्रूथ भी है। होली कम्युनियन में हाँ, फ़ोन देते हैं गिफ्ट में, ऐसे करके वहाँ पे वो बोल देते हैं। एंड ये जो प्रथा है ये कहीं न कहीं यहाँ पे भी शुरू हुई क्या, कहीं न कहीं लगता है। और ख़ासकर पैंडेमिक के बाद तो हर बच्चों के पास में सेल फ़ोन है। एंड किस वे से लाइक टैकल किया गया सिचुएशन, दैट वाज़ रियली नाइस। और बेसिकली जो सच्चाई रहा, उसको जिस तरह से जो माता है वो काफ़ी अच्छे वे से लाइक डील करती है उस छोटे बेटे को हैंडल करने के लिए। वो कन्वर्सेशन लेके आती है कि छोटा बेटा क्या माँग रहा है, बात करती है उसके पापा के साथ, उसके भाई-बहन के साथ बात करती है। एंड कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रहता है जब हम ट्रूथ को जब हम डील करने का जब सोचते हैं, जो कि आज हमारा टॉपिक है। कहीं न कहीं ये ट्रूथ को जब हम डील करने का कोशिश करते हैं तो वी नीड पीपल इन आवर सराउंडिंग। और स्पेशली लाइक जो भी एक्शन आप लेना चाहते हैं, उस एक्शन को कहीं न कहीं चेक करने के लिए, कहीं न कहीं क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या सोच रहे हो बिफोर सेइंग समथिंग टू समवन, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये तो रही बात को लेके, जो कि आज का वीडियो हम देखे, ये कम्युनिकेशन को लेके और एक फैमिली को कैसे गठित एक बढ़िया फैमिली बनाना है क्राइस्ट में, उसको लेके ये वीडियो था। लेकिन आज का वचन जब हम लोग देखते हैं तो कहीं न कहीं जो आज हमारा तो जब हम सच्चाई को लेके जो हमारा थीम है, उसके ऊपर में अगर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट होता है कि ये ट्रूथ जो है वो एक्शन के साथ लाइक जाना चाहिए। मैं आप लोगों का ध्यान लास्ट वर्स पे लेके आना चाहूँगा। इंग्लिश में है, डियर चिल्ड्रन लेट अस नॉट लव विथ वर्ड्स और स्पीच बट विथ एक्शन एंड इन ट्रूथ। हिंदी में थोड़ा मिस्टेक्स हैं, लेकिन आई थिंक हमें समझ में आ रहा है कि आज का वचन क्या बोल रहा है। हम लास्ट वाले को ही लेंगे फिर। बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। हृदय के नहीं है, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन्स है, बिकॉज़ प्यार करना बोलने से आप पहला ऊपर में जब पढ़ते हैं, दिस इज हाउ वी नो व्हाट लव इज, इट्स लाइक क्राइस्ट laid down his life for us, एंड हेंस हमें भी अपना लाइफ अपने भाई बहनों को देना है। और नेक्स्ट चीज वही है कि कोई मटेरियल पोजीशन है और अपने भाई बहन अगर नीड में है, need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? एक स्मॉल सा लाइक पोजेशन को लेके एक लाइक बेसिक लेवल में यहाँ पे जॉन के लेटर में हमें बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये truth को जब बात करते हैं हम, तो ये डेवलप होता है दो सोल्स के बीच में, ट्रस्ट से। इवन हम वीडियो ट्रूथ का जब बात होता है तो ये सिंगल पर्सन का बात नहीं होता है, यहाँ पे टोटली एक सराउंडिंग का बात होता है। और कहीं ना एक दूसरे के करते हो, कहीं इन्फॉर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट होगा बात कर रहे हो तो। और खासकर आज का जो जनरेशन है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और हमें अगर किसी चीज़ में लाइक आगे बढ़ना है, इस टेक्नोलॉजी को लेके आगे आना है, तो हमें भी इन्फॉर्म रहना बहुत ज़रूरी। और एक दूसरे के साथ अगर हम वार्तालाप कर रहे हैं
तभी जाके वो इंफॉर्मेशन में और आगे हम बढ़ पाएंगे। और सेम चीज़, ये 2 सोल का बात जब मैं किया, सेम चीज़ अगर हम क्राइस्ट को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इटर्नल लाइफ की तरफ में हमारा डायरेक्शन होना चाहिए। और इटर्नल लाइफ के लिए अगर हम अपने आप को डायरेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे इंफॉर्मेशन या फिर या जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा वो वही है कि जो भी लोग एक्शन और ट्रूथ को लेके आगे बढ़ रहे हैं वही लोग वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वही लोग क्राइस्ट के साथ चल रहे हैं, हेंस दे कैन हेल्प यू आउट। एक बढ़िया सा डायलॉग भी था आपका वीडियो में कि टेक्नोलॉजी is here to stay, so we need to learn how to live with it. So यहाँ पे टेक्नोलॉजी is here to stay, तो हम यहाँ पे क्या को स्टे करवाना का बात कर रहे हैं। We need to think, जब टेक्नोलॉजी यहाँ पे बोला तो मेरे को भी लगा कि यहाँ पे जो हमारे फैमिली में या फिर खुद के जीवन में हम क्या को स्टे करवाने का हमारा मेन मकसद होना चाहिए। दैट इज गॉड। गॉड बोलने से फिर दैट इज लव, और लव बोलने से फिर इट शुड कम विथ एक्शन एंड ट्रूथ। और अगर हम अपडेटेड नहीं हैं देन बहुत मुश्किल है, और अपडेटेड रहने के लिए वी नीड टू टॉक। और ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, मैं पहले बोला कि स्टे इन्फॉर्म्ड रहने वाला, लेकिन जब एक सोल टू सोल जब बात करता है, इट्स अबाउट लाइक वी नीड टू इवैल्यूएट। इंफॉर्मेशन काफी नहीं होता है। खासकर एक एग्जांपल लाइक एक फैमिली में अगर बच्चे हैं, माता पिता हैं, और फैमिली अच्छा है, फैमिली लाइक ट्रस्ट करता है अपने बच्चों के ऊपर एंड ऑल, और बच्चा बड़ा होता है और इधर उधर मार्केट वार्केट जा रहा है मम्मी पापा के साथ, समझ रहा है चीज़ों को। एंड उसके बाद बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, उसको पता है कि कौन से दुकान से वो लोग लेते हैं, क्या क्या नहीं लेते हैं। और खासकर ये बेसिकली अपना आरएसपी परिवार में देखा हूँ काफ़ी बार, और लाल खाता रहता है, हम जाते हैं वहाँ से उठा लेते हैं और पापा मम्मी लोग पे कर देते हैं बाद में। ट्रस्ट है, अच्छी बात है। तो बच्चा बड़ा होता है, फिर वो जाता है लेके आता है, ट्रस्ट है, वेरी नाइस। और उसका पापा कभी उसको कुछ बोलेगा नहीं, हाँ वो कुछ लिया था, इतना पे करना है, कर दिया। वो चेक नहीं करेंगे, या फिर चेक कर भी रहे हैं तो फिर ज्यादा ऐसे कुछ तो खर्चा नहीं हुआ, फाइन है, लिया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये जो बिल्ड होने वाला चीज है ट्रस्ट का, ठीक है, ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लाइक मिस हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट कि वो बच्चा वो ट्रस्ट को लेके कभी भी आगे खेल सकता है, या फिर ये जो कम्युनिकेशन का जो बात है उसमें अजम्पशंस डेवलप हो सकते हैं कि पापा तो उस टाइम में कुछ बोले नहीं तो आगे भी जाके कुछ बोलेंगे नहीं। और assumptions क्रिएट होना इट्स वेरी डेंजरस, एंड हेंस लाइक सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस में नहीं रहना, रादर देन वी नीड टू ट्राई टू मेक वन स्टेप उसमें अहेड लेके जाना होता है, दैट इज इवैल्यूएट। अगर हम इवैल्यूएट कर रहे हैं बैठ के, जब हम बात कर रहे हैं क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये 4 चीज होते हैं। अगर हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, इवन वीडियो में भी हम देखें, तभी जाके सच्चाई दिखाई देगा, सच्चाई को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो ये तो एक फैमिली लाइफ वाला चीज हुआ। यही चीज हमें गॉड के साथ भी करने का जरूरत है। और जैसे कि सेंट जोआकिम और अन्ना
का पर्व हम मनाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें उनके यहाँ उनके टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन उनको भली भांति पता था कि अगर ईश्वर उनके जीवन में है तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और ईश्वर तभी होंगे हमारे जीवन में जब हम एक्शन और ट्रूथ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और वो लोग करते थे, वो उस दिन भी मैं बोला था, आज भी मैं फिर से बोलूँगा, वो लोग करते थे। वो 2/3 वाला चीज़ उनका रहता था। वो जो कुछ सोच रहे थे, बोल रहे थे, they were doing it with their actions, providing it for the poor, providing to the like church नहीं, उनका temple, providing to the priest, and hence like वो action और truth बरकरार जाता था। सो जब हमें लव ऑफ गॉड को स्प्रेड करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्शन और ट्रूथ में उतरना। सो आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद ईश्वर आज के वचनों के लिए, आज के वीडियो के लिए, कि आप हम सबों को मदद की है इतने दूर आने के लिए, जो भी हमने शुरू किया। ये और सिर्फ 2 दिन बाकी है पर्व मनाने के लिए। हाँ ईश्वर, हम सबों को मदद कर कि जो भी थीम्स को लेके हमने डिस्कस किया, जो भी थीम्स को लेके हमने सुना, देखा, हमें मदद कर कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, लेकिन जनरेशन वाइज हम लोग सोच सकें। जिस तरह से वचन का पहला लाइन ही में आता है कि क्राइस्ट लेड डाउन हिज लाइफ फॉर अस, ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया। ये जो वचन है ये कहीं ना कहीं इसको अंकित करने के लिए माता मरियम को सेंट जोकिम और अन्ना काफ़ी हेल्प किए रहेंगे। एंड वाइल शी वाज 16 शी एक्सेप्टेड द ऑफर टू ब्रिंग क्राइस्ट इन दिस वर्ल्ड। सो लॉर्ड माय गॉड, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी योजनाएं जो आपने डिज़ाइन किया सेंट जोकिम और अन्ना के साथ, उसी तरह हमारे साथ भी डिज़ाइन कर, ताकि हमारा जो जनरेशन है, आने वाले जनरेशन्स को लेके हमारे अंदर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी चहल पहल हो, और हमें आलोकित कर, हमें बुद्धि प्रज्ञा से भर, ताकि हम उस लेवल पे जाके अपने आप को अर्पित कर सकें, अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को अर्पित कर सकें। हाँ पवित्र आत्मा, हम सबों को इस जर्नी में मदद करिए। जितना भी हमारा ब्रेथ बाकी है, हम इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम अप्लाई कर सकें अपने जीवन में, और एक्शन और ट्रूथ से लव को स्प्रेड कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता हमारी प्रार्थना सुन।